Hey guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Salman Khan dances his heart out with Janelia Deshmukh. Did Samantha and Naga Chaitanya avoid eye contact while shooting at a film studio? Janhvi Kapoor reacts as Karan Johar dishes out fashion tips wearing a parachute. Zoya Akhtar reveals how Alia Bhatt, Katrina Kaif, Priyanka Chopra were roped in for Jile Zara. Janhvi, you want to say anything about his outfit? No one. Is this oversized an outfit, Karan? No, you're looking really chic and uber athleisure yourself. Both of us are very fashionable. I have no interest. Bye. फराह खान ने फिर उड़ाया करण जौहर के कपड़ों का मजाक। फराह ने करण और जानवी से उनके आउटफिट्स के बारे में सवाल पूछे और फिर कर दिया सुनने से इनकार। करण जौहर अक्सर अपने पॉपुलर वीडियोस की वजह से सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान ही फिल्म्ड मेनी हिलेरियस वीडियोस ऑफ हिज ट्विंस यश एंड रूही इन द सीरीज लॉकडाउन विद द जोहर्स और उससे पहले हुआ था द टूडल सीरीज फ्रॉम द सेट्स ऑफ अ रियलिटी शो। लेकिन इट लुक्स लाइक अब करण खुद एक वीडियो सीरीज के कास्ट मेंबर बन गए हैं जिसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर रही है फराह खान। Karan Johar is always spotted in expensive branded clothing and while his style might seem quirky to some, वो अपने OOTDs की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं। लेकिन it looks like उनकी फ्रेंड फराह खान को उनके फैशन चॉइसेस कुछ खास पसंद नहीं आ रहे हैं। Farah shared a video from Karan Johar's office जहां वो करण से उनके आउटफिट ऑफ द डे के बारे में पूछती है। करण कहते हैं So Farah, hi, good evening, namaskar. I'm wearing an oversized silhouette. It's an oversized baggy athleisure zone. Now, it is oversized and that's the new thing. Any other tips, please contact me because you need desperate help. Farah then points the camera to Janhvi जो वहीं एक काउच पे बैठी हुई है and asks her कि उन्हें करण के आउटफिट के बारे में क्या कहना है। Anything else you want to say about this? Janhvi, you want to say anything about his outfit? No one. Is this oversized an outfit, Karan? No, you're looking really chic and uber athleisure yourself. लेकिन उनका ये म्यूचुअल एडमिरेशन जल्द खत्म हो जाता है जब फराह उनकी बात काटते हुए कहती है Is this oversized an outfit, Karan? No, you're looking really chic and uber athleisure yourself. Both of us are very I fashionable. have no interest. Bye. फराह ने इस हिलेरियस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पेज पे शेयर करते हुए लिखा The weight is oversized. Karan Johar in his office wearing a parachute. Guest appearance by Janhvi Kapoor. दिल्ली में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के आउटडोर स्केड्यूल के बीच भी फराह ने ऐसे वीडियोस अपने सोशल मीडिया पेज पे शेयर किए थे where she made fun of Karan's outfit choices and recorded videos of him where she cuts him off while he is still speaking. Oh, a walk in the garden. You don't approve of my floral? It's Burst. lovely. It's फूल के लिए गुलशन गुलशन. It's from a designer called Ashish. He makes beautiful. Okay, we don't want to hear anymore. Bye. Well, it's fun to see कि किस तरह करण को उसके फ्रेंड्स ट्रोल कर रहे हैं. Keep the videos coming. So Farah, hi, good evening, namaskar. I'm wearing an oversized silhouette. It's an oversized baggy athleisure zone. Now, it is oversized and that's the new thing. Any other tips, please contact me because you need desperate help. Anything else you want to say about this? Janhvi, you want to say anything about his outfit? No one. Is this oversized an outfit, Karan? No, you're looking really chic and uber athleisure yourself. Both of us are very fashionable. I have no interest. Bye. आखिर कैसे प्रियंका, कैटरीना और आलिया को एक ही फिल्म में साइन किया जोया अख्तर ने? How did she convince three Bollywood leading ladies to work together in an all-female multi-starrer film? जोया अख्तर बॉलीवुड की सबसे टैलेंटेड फिल्म मेकर्स में से एक है। उन्होंने अपनी हर फिल्म के साथ क्रिएटिव बाउंड्रीज को पुश किया है और अनयूजुअल स्टोरी लाइंस को एक्सप्लोर किया है।
With Jile Zara, Zoya and her brother Farhan are all set to collaborate once again on a project that will change the way films are made by bringing together 3 female superstars. लेकिन ये कास्टिंग को पुल ऑफ करना इतना भी मुश्किल नहीं था. Take a look. इस साल जब जीले जरा की अनाउंसमेंट हुई, there was a lot of excitement and cheer. क्योंकि पहली बार बॉलीवुड में कोई एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म बना रहा है जिसमें एक नहीं 3 लीडिंग लेडीज है who will be taking a road trip together. दिल चाहता है और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में लड़कों ने लिए रोड ट्रिप्स और लाइफ चेंजिंग जर्नीज. बट अब बारी थी लड़कियों की. After years of hearing about rivalries between women in cinema, we are finally at a point जहां 3 super successful Bollywood actresses एक साथ काम करने जा रही है. During a recent interview, Zoya revealed कि आखिर कैसे ये तीनों एक साथ एक फिल्म से जुड़ गए. Zoya shared कि आलिया और कैटरीना ने उन्हें पहले कांटेक्ट किया saying कि उन्हें और प्रियंका को एक साथ काम करना था. कोइंसिडेंटली उसी दौरान फरहान भी एक गर्ल्स रोड ट्रिप आइडिया पे काम कर रहे थे, which he had pitched to her. Zoya said Farhan had an idea that he had bounced saying, I want to do this with girls. He had come up with it and wanted to do this. He had told me one line. And very independently, I was contacted by Alia and Katrina, not knowing about Farhan saying that we want to work together. Because Priyanka had called them. It just aligned. Zoya added कि अगर 10 साल पहले भी 3 सुपरस्टार लीडिंग लेडीज ने ये आइडिया पिच किया होता तो an all girls road trip movie would have been made. Zoya also added कि सबसे एक्साइटिंग और खास बात ये है कि हर एक्ट्रेस की अपनी अलग पर्सनालिटी है and neither of them is like the other. We are super excited about Jile Zara as well. Here's hoping we can get to see many more films with women collaborating soon. कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा आए थे अलग गाड़ियों में, लेकिन शायद एक साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे. The rumored couple was spotted at the Mumbai airport as they seemed to head off for a vacation to bring in 2022. कियारा और सिद्धार्थ ने शेरशाह में पहली बार एक साथ काम किया. And it looks like Cupid struck the good-looking pair on the sets of the film. दोनों अक्सर एक साथ स्पॉट किए गए हैं. And while they never confirmed their relationship, उनके बीच की chemistry is undeniable. One word when I say Kiara. Oh, You can say ye dil mange more. Yeah, Dil Mange More. So bad. I was just about to say looking forward. So Dil Mange More for sure. पिछले साल भी दोनों ने रिपोर्टेडली एक साथ न्यू ईयर्स ईव को सेलिब्रेट किया था इन द मालदीव्स. Though they didn't post any pictures together, दोनों को साथ में मुंबई लौटते हुए स्पॉट किया गया. This year the two have a lot to celebrate. उनकी फिल्म शेरशाह बहुत सक्सेसफुल थी and it won the hearts of Indians around the world. Looks like the couple are all set to unwind and relax, लेकिन separately या साथ-साथ ये हम कंफर्म नहीं कर सकते. सिद्धार्थ और कियारा को पेपराज़ी ने मुंबई एयरपोर्ट पे स्पॉट किया as they arrived in separate cars, all set to bid 2021 goodbye. Kiara looked cozy in a sweater dress, जिसके साथ उन्होंने पहने थे सफेद boots. She carried a grey Christian Dior bag to complete her comfy holiday look and added sunglasses क्योंकि छुट्टी पे अच्छे ग्लेयर्स तो कैरी करने ही पड़ते हैं. सिद्धार्थ ने चुना एक व्हाइट प्रिंटेड टी शर्ट जिसके साथ उन्होंने पहना एक ऑलिव ग्रीन डेनिम लेदर जैकेट और ब्लैक जीन्स. He carried a stylish backpack and wore cool shades to look like a total star. कियारा और सिद्धार्थ ने एक साथ पेपराज़ी की तरफ देख के वेव किया
before they entered the airport together. अब आगे का सफर एक साथ है या इंडिविजुअली, ये शायद सोशल मीडिया से पता चलेगा। Here's wishing Kiara and Siddharth happy holidays. अगर आप चाहें तो इस नए साल में अपनी रिलेशनशिप को कंफर्म कर सकते हैं। That will make it a very happy new year indeed for the fans. जेनेलिया देशमुख ने सलमान के जन्मदिन पे शेयर किया एक वीडियो of her and Salman grooving to a track together while twinning in matching maroon t-shirts. जेनेलिया ने एक नया वीडियो अपने सोशल मीडिया पेज पे शेयर किया है जहां वो और सलमान दिल खोल के नाच रहे हैं। दोनों ही मरून टी-शर्ट्स में ट्विन कर रहे हैं एंड इट लुक्स लाइक दोनों साथ में खूब एंजॉय कर रहे हैं। दोनों के एनर्जेटिक डांस मूव्स वाकई कमाल के हैं और इस खास क्लिप को शेयर करते हुए जेनेलिया ने लिखा, May God bless you with loads of happiness, love and great health. सलमान के जन्मदिन पर उन्होंने ऑर्गेनाइज की एक ग्रैंड पार्टी जहां उन्होंने अपनी नीस अयात के साथ बर्थडे केक काटा और सेलिब्रेट की अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। There was plenty of drama on his birthday क्योंकि उस दिन सुबह सलमान को एक सांप ने काट लिया था। But luckily it was a non-poisonous snake और सलमान अपनी बर्थडे पार्टी के लिए सही सलामत लौट आए। अपनी फैमिली और बॉलीवुड फ्रेंड्स के अलावा सलमान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर भी सलमान के एक बर्थडे वीडियो में नजर आई। In a video shared on a fan's social media page, यूलिया केक कटिंग के दौरान सलमान के पीछे खड़ी नजर आई। सलमान एंड यूलिया have never confirmed their rumored relationship, लेकिन पिछले साल लॉकडाउन के दौरान भी वो सलमान के साथ उनके फार्म हाउस पे थी and is often seen accompanying the actor to events. अपने लव्ड वंस के साथ पार्टी करने के साथ साथ सलमान ने मीडिया के साथ भी इंटरैक्ट किया और अनाउंस की अपनी 2 अपकमिंग फिल्म्स। सलमान विल बी वर्किंग इन द सीक्वल टू बजरंगी भाईजान, जिसकी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं के.वी. विजेंद्र प्रसाद, जो बाहुबली डायरेक्टर एस.एस. राजमौली के पिता हैं। कहीं ऐसी खबरें आई थी, आपसे जानना चाहूँगा कि राजामौली साहब के साथ में आपके कुछ आई डोंट नो, आप ही बता दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। अगर होगा तो ज़रूर, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं वो, लेकिन उनके फादर के साथ ज़रूर होगा। उन्होंने बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट लिखी है जो कि उन्होंने टाइटल दिया है पवन पुत्र भाईजान। तो वो जैसे वो कंप्लीट कर लेंगे और जैसे ये जो 2 पिक्चरें होने वाली हैं, टाइगर कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद नो एंट्री शायद होगी और कभी ईद कभी दिवाली शायद होगी। तो ये 2 पिक्चरें उसके बाद वो कर लेंगे। When Mr. Rajamouli was asked about this, he said, I am happy that my father is writing the script. It's great. Everyone loves Bhaijan. Everyone loves Salman Bhai as Bhaijan and Bajrangi adds to his persona. Forget everyone. I am eagerly looking forward to watching it. Well, we are looking forward to watching it too. Here's hoping अब थिएटर्स इसी तरह ओपन रहे और हमें भाईजान को बड़े पर्दे पे देखने का मौका मिलता रहे। क्या समांथा और नागा चैतन्य ने एक ही स्टूडियो में होते हुए भी एक दूसरे को किया अवॉइड? Naga Chaitanya and Samantha announced their separation this year after 4 years of marriage. और लगता है कि दोनों ही फिलहाल एक दूसरे को मूव ऑन करने के लिए स्पेस दे रहे हैं। It's always hard when a long-term relationship comes to an end. Samantha और नागा चैतन्य almost 10 साल एक दूसरे के साथ थे and they married after being friends and dating each other for almost 6 years before that.
दोनों ही अपने अपने करियर्स के साथ अब बिजी है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट गिवन दैट दे वर्क इन द सेम फिल्म इंडस्ट्री, इस तरह के ऑकवर्ड एनकाउंटर्स का सामना उन्हें शायद करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि कुछ दिन पहले रिसेंटली डिवोर्स्ड कपल समंथा और नागा चैतन्य एक ही वक्त पे रामा नायडू फिल्म स्टूडियोज में शूट कर रहे थे, लेकिन द टू कंप्लीटली अवॉइडेड ईच अदर। दोनों ने अक्टूबर में अपना सेपरेशन अनाउंस किया था वाया अ सोशल मीडिया स्टेटमेंट, जिसके बाद दे हैव बीन बिजी विद वर्क एंड देयर रिस्पेक्टिव पर्सनल लाइव्स। Samantha has spoken about how devastated she was after her separation. और वेटरन एक्टर नागार्जुना के बेटे के साथ अपना रिश्ता तोड़ने के बाद उन्हें विशियस ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। नागा चैतन्य ने भी एक इंटरव्यू के दौरान रिमार्क किया that he would never do a role that would embarrass his family, a comment that many felt was a taunt on his ex-wife and a hint as to why they separated. दोनों ने अपनी सेपरेशन को अनाउंस करते हुए लिखा था, We are fortunate to have a friendship of over a decade that was the very core of a relationship which we believe will always hold a special bond between us. We request our fans, well-wishers and the media to support us during this difficult time and give us the privacy we need to move on. दोनों ही तेलुगु इंडस्ट्री में काम करते हैं और इसकी वजह से उनका स्टूडियोज और इवेंट्स पे टकराना लाजमी है। Recently it was reported कि समंथा रामा नायडू स्टूडियो में अपनी फिल्म यशोदा के लिए शूट कर रही थी और नागा चैतन्य अपनी फिल्म बंगाराजू के लिए फिल्म कर रहे थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को कंप्लीटली अवॉइड किया और काम खत्म करने के बाद वो अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के तुरंत स्टूडियो से चले गए। समंथा अब अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ गोवा में है, जहां वो 2021 को करेंगी गुड बाय। समंथा और नागा चैतन्य यूजुअली न्यू ईयर सेलिब्रेट करने किसी एग्जॉटिक फॉरेन डेस्टिनेशन जाते थे, लेकिन इस साल समंथा विल बी ब्रिंगिंग इन 2022 विद हर बेस्टीज। समंथा शेयर्ड अ पिक्चर विद हर फ्रेंड्स जहां वो गोवा में ट्रैकिंग करने के बाद एक वाटरफॉल का मजा ले रहे हैं। Samantha looks lovely in her no makeup look and a stunning blue swimming costume. We hope कि समंथा और नागा चैतन्य इस आने वाले साल में अपनी लाइव्स में दोबारा खुशी ढूंढ सके। प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट गाइस स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। Thanks to social media and the explosion of digital content in India, आज हमारे पास है कई टीवी एक्टर्स, होस्ट, कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स जिनके सोशल मीडिया फॉलोइंग किसी बड़े सुपरस्टार से कम नहीं है। Here are 5 small screen stories that grabbed our attention today. Moni Roy shared a new video on her social media page जहां वो अपने 2 कोरियोग्राफर दोस्तों के साथ डांस कर रही हैं। Moni Roy is well known for her graceful dance moves और इस वीडियो में भी वो बिल्लौरी गाने पर अपने लटके झटके खूब दिखा रही हैं। Moni Roy looks lovely in a black सलवार कमीज जिस पे white embroidery की हुई है। Looks like the actor is preparing to attend a wedding function या फिर कहीं अपनी ही शादी के संगीत में नाचने के प्लान्स तो नहीं। क्या राखी सावंत पे छा गया है कोई बुरा साया? राखी सावंत बिग बॉस 15 में अपने एंटिक्स के साथ सबका मनोरंजन कर रही हैं, लेकिन इन एन अपकमिंग एपिसोड वो अपनी हरकतों से बाकी कंटेस्टेंट्स को डराने वाली हैं। आने वाले एपिसोड के प्रोमो में राखी सावंत इज सीन मूविंग एंड ट्रैशिंग हर लेग्स इन हर स्लीप। राखी सावंत नींद में अपने बदन को झटके दे रही हैं। रश्मि देसाई ट्राइज टू कवर हर विद अ ब्लैंकेट, लेकिन लुकिंग एट हर लेग्स मूव अगेन रश्मि देसाई डर के भाग जाती हैं। आखिर क्या है माजरा? क्या राखी सावंत को आया एक बुरा सपना या फिर वो कर रही हैं कुछ नया ड्रामा? गौहर खान has shared a hilarious new video for Christmas on her social media page. वीडियो में गौहर खान को कोई टांगों के बल खींच रहा है and as she is dragged out, उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि क्रिसमस के लिए लोगों को एक अच्छी बीवी नहीं मांगनी चाहिए because she is already taken. The video is quite funny और शायद इसे शूट करते वक्त गौहर खान को भी बहुत मजा आ रहा था।
कपिल शर्मा के शो पर आने वाले हैं RRR के स्टार्स जूनियर NTR, रामचरण एंड आलिया भट्ट। कपिल शर्मा ने आलिया भट्ट को चिढ़ाने का मौका नहीं छोड़ा एंड आस्क्ड हर कि उन्होंने RRR साइन करने से पहले फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी थी या फिर सिर्फ आर देख के उन्होंने हाँ कह दी। आलिया भट्ट इज सीन ब्लशिंग ऑन हियरिंग दिस। कपिल शर्मा और फिल्म के डायरेक्टर SS राजामौली भी बातचीत करते हैं, लेकिन क्योंकि कपिल शर्मा की इंग्लिश कमजोर है और SS राजामौली की हिंदी, दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हुए स्ट्रगल कर रहे हैं बट आर लाफिंग एट द लिंग्विस्टिक इश्यूज। वहीं कृष्णा अभिषेक भी अपनी हरकतों से शो पे आए गेस्ट्स को खूब हंसाते हैं एंड इट लुक्स ये एपिसोड हंसी का मैग्नम ओपस होने वाला है। डेली सोप अनुपमा में आने वाला है ढेर सारा ड्रामा। अनुज कपाड़िया की बहन मालविका क्रिएट कर रही है शाह परिवार और अनुज कपाड़िया के घर पे टेंशंस। आफ्टर वॉकिंग आउट ऑफ अनुज कपाड़िया's हाउस, मालविका वनराज के घर पर रहने लगी है, जिसकी वजह से काव्या बहुत इनसिक्योर हो गई है। वहीं अनुज कपाड़िया अनुपमा को बताता है कि मालविका इसलिए घर छोड़ के गई है क्योंकि उन्होंने उसके सामने अनुपमा की कुकिंग की तारीफ की थी। मालविका और वनराज एक साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वनराज मालविका के आइडियाज की तारीफ करता है, which worsens काव्या's state of mind। क्या मालविका की वजह से वनराज और काव्या के बीच बढ़ जाएंगी दूरियां? Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, you guys, please stay safe.